Hello everyone, welcome in Fundamentals of Power Electronics. This is our lecture number 32 on the topic Bridge type full wave controlled rectifier for resistive load. Course outcome is student will able to maintain phase controlled rectifier, and the learning outcome is student will able to explain with sketches the working of bridge type full wave fully controlled rectifier for resistive, that is for R load. In the previous lecture we studied the single phase midpoint type controlled full wave rectifier for the RL load. In this midpoint type rectifier there is one transformer having the secondary is centered. इसमें ट्रांसफॉर्मर एक ट्रांसफॉर्मर यूज होता है जिसकी कि सेकेंडरी जो वाइंडिंग रहती है उसमें से क्या रहती है, मिड पॉइंट टाइप मतलब सेंटर टैपिंग ली रहती है, इसीलिए इसको नाम दिया है मिड पॉइंट टाइप रेक्टिफायर. इसको दूसरा नाम क्या है, सेंटर टाइप रेक्टिफायर. हियर in this type of rectifier there is two SCR T1 and T2. For the positive half cycle T1 SCR is work, and for the negative half cycle T2 SCR is work. But here is inductive type load RL load, therefore there is negative load voltage appears across the load. Due to this negative load voltage the average output voltage is decreases. To remove this negative load voltage and to improve the output load voltage, we can connect the freewheeling diode across the RL load. So this is the waveform for the midpoint type rectifier. First waveform is for the input supply voltage, second waveform is for gate current, third waveform for load voltage, and the fourth waveform is for load current. This is the midpoint type rectifier which we studied in the previous lecture. Now we are going to study the bridge type rectifier. As we know that full wave rectifier is of two types, one is midpoint type rectifier and another one is the bridge type rectifier. So we are going to study the the bridge type rectifier for the resistive load. Let us see. Single phase bridge type controlled full wave rectifier for resistive load. Here we are going to study the single phase rectifier. So the input is single phase AC supply, which is denoted by Vs. In the bridge type rectifier we are using 4 thyristor. Here this is our control rectifier, so we are using a SCR, that is thyristor, which is a control device. Next we are going to study the rectifier for the resistive load. So we are using the resistive load. The voltage across resistor is denoted by VL, that is voltage across load, and the current flowing through the load is denoted by IL. So here we are using 4 thyristor, namely T1, T2, T3, T4. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई. हम स्टडी कर रहे हैं रेक्टिफायर जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा. तो इनपुट सप्लाई हमारा एसी सप्लाई मतलब साइनोसाइडल. तो फर्स्ट वेवफॉर्म शोज द इनपुट वोल्टेज. सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल जब ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 है, वहाँ से हमारा क्या चालू हो रही है, पॉजिटिव हाफ cycle. During positive half cycle upper terminal become positive and the lower terminal become negative. Therefore
पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द A point and negative is connected to the B point. So यहाँ पे अगर A टर्मिनल अगर हमारा पॉजिटिव बना तो ये पॉजिटिव होने के कारण हमारा थायरिस्टर T1 के एनोड को पॉजिटिव जा रहा है और T2 के कैथोड को पॉजिटिव जा रहा है। तो T1 और T4 में से T1 SCR जो है वो हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। उसी के साथ साथ B को क्या जा रहा है, निगेटिव। तो निगेटिव होने के कारण B को निगेटिव T3 को कनेक्ट किया तो वो क्या होगा, रिवर्स बायस, और T2 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। मतलब जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा T1 और T2 क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस। वैसे ही अगर निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो निगेटिव में A टर्मिनल हमारा अपर टर्मिनल निगेटिव बनेगा, लोअर पॉजिटिव। सो द टर्मिनल A बिकम negative and the terminal B become positive. Therefore A अगर हमारा निगेटिव हुआ तो निगेटिव किसको चाहिए, कैथोड को कनेक्ट होना चाहिए, तब वो फॉरवर्ड बायस होता है। तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए T1 और T4 में से कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा, T4 थायरिस्टर। और B पॉजिटिव था क्योंकि लोअर टर्मिनल निगेटिव हाफ साइकिल है, तो B पॉजिटिव है तो इसमें से एनोड किसके कनेक्ट है, T3 का। तो T3 और T2 में से T3 SCR जो है फॉरवर्ड बायस बनेगा। हमको पता है SCR कब ऑन होता है, जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तब। पहली कंडीशन कि वो हमारा SCR क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और बाद में उसको गेट सप्लाई मिलना चाहिए सफिशिएंट अमाउंट का, तब जाके हमारा SCR क्या होता है, ऑन होता है। सो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा कौन सा SCR फॉरवर्ड बायस होगा, T3 एंड T4। पॉजिटिव के लिए कौन सा होता था, T1 एंड T2, एंड नेगेटिव के लिए T3 एंड T4 होगा हमारा फॉरवर्ड बायस। सो लेट अस डिस्कस इट्स वर्किंग। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्रॉम ओमेगा t equals to 0 the positive half cycle will start. During positive half cycle SCR T1 and T2 becomes forward bias, क्योंकि अपर टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, A टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, तो इसलिए T1 और T2 क्या हो गए, फॉरवर्ड बायस हो गए। बट इट डज नॉट टर्न ऑन अंटिल अ गेट पल्स इज नॉट अप्लाइड। जैसे ही हम इसको गेट पल्स दे देंगे तब जाके वो ऑन हो जाएगा, पर जब तक उसको गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये ऑन नहीं होंगे। ऑल SCR आर वर्क लाइक अ स्विचेस। तो ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया हुआ है हमने 4 SCR है, मतलब 4 स्विचेस लगे हुए हैं। तो ये फॉरवर्ड बायस हुए हैं T1 और T2 ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पर ये ऑन नहीं होंगे जब तक हमारा SCR को गेट पल्स नहीं मिलेगी। सपोज मैंने कुछ एंगल के बाद इसको गेट पल्स दे दी, किसको, थायरिस्टर T1 एंड T2 को, इसलिए हमने गेट पल्स का नाम क्या दिया, IG1 एंड IG2। तो ये एंगल पे मैंने इसको गेट पल्स दिया, द एंगल एट विच वी आर गिविंग द गेट पल्स to the SCR and it will turn on. This angle is known as firing angle which is denoted by alpha. ये अल्फा पे हमारा SCR T1 और T2 क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। मतलब ये जो स्विच है T1 और T2 स्विच क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और जो भी हमारा इनपुट सप्लाई वोल्टेज है वो किसको मिलेगा, लोड को मिलेगा। यहाँ से इनपुट सप्लाई वोल्टेज किसको कनेक्ट हो जाएगा, T1 और T2 के थ्रू लोड को कनेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव A टर्मिनल का पॉजिटिव यहाँ से लोड के पॉजिटिव को कनेक्ट हो गया, और निगेटिव लोड के निगेटिव को कनेक्ट हो गया। जैसे ही T1 और T2 ऑन हो जाएंगे इनपुट वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द लोड। तो ये अल्फा एंगल के बाद हमने इनपुट वोल्टेज डॉटेड करके शो किया था। तो इतना पोर्शन जो है पूरा का पूरा AC सप्लाई का किसको मिलेगा, लोड के अक्रॉस आ जाएगा। कब, when the gate pulse is given to the SCR T1 and T2। पर बिफोर अल्फा के पहले कोई ऑन हुआ था क्या स्विच, नहीं। तो ये चारों स्विच अगर ऑफ है तो इनपुट सप्लाई लोड के तरफ मिल पाएगा क्या, नहीं। तो उसके पहले जो इनपुट वोल्टेज क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा। जैसे वोल्टेज की वेवफॉर्म है वैसे ही करंट की रहेगी, एज द लोड इज रेजिस्टिव इन नेचर। लोड हमारा रेजिस्टिव नेचर का है, तो जैसे वोल्टेज की वेवफॉर्म है वैसे ही क्या रहेगी, हमारी करंट की वेवफॉर्म रहेगी। फिर एट ओमेगा t इक्वल्स टू पाई, पाई पे क्या हुआ,
करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड बिकम 0। लोड में से जाने वाला करंट क्या हुआ, 0 हुआ। मतलब SCR T1 और T2 में से भी वही करंट जा रहा था, तो वो करंट भी क्या हो गया, 0। देयरफॉर द SCR T1 एंड T2 नेचुरली कम्यूटेट्स, वो क्या हो गए, नेचुरली ही टर्न ऑफ हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें से जाने वाला करंट क्या हो गया, 0 हो गया एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई। उसके बाद क्या चालू हो रही है हमारी, निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए टर्मिनल ए बिकम निगेटिव एंड टर्मिनल बी बिकम पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बना, ये निगेटिव बना। तो निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कौन से SCR फॉरवर्ड बायस हो गए, T3 एंड T4, बट इट डज नॉट टर्न ऑन अंटिल अ गेट पल्स इज नॉट अप्लाइड। तो जब तक इसको गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। और अगर ये ऑफ है, T1 T2 पहले से ही ऑफ हो गए हैं और T3 T4 ऑन होने के थे, तो हमारा इनपुट सप्लाई लोड को जा पाएगा क्या, नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल है, हमको SCR को ऑन करना है। कौन से SCR फॉरवर्ड बायस है, T3 एंड T4। तो T3 और T4 को हम निगेटिव हाफ साइकिल में क्या देंगे, गेट पल्स। So the third waveform is for IG3 and IG4, gate current for SCR3 and gate current for SCR4. At the same angle we are giving the gate pulse to the SCR3 and SCR4. So therefore this is the alpha distance, so this angle become pi plus alpha. So pi plus alpha पे हमारा SCR कौन सा ऑन होगा, T3 एंड T4 गेट पल्स दे दिया। तो ये जैसे ही T3 और T4 ऑन हो गया, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव यहाँ से कनेक्ट है, तो ये लोड के पॉजिटिव को मिल रहा है, और ये निगेटिव, ये जो पॉजिटिव है T3 से होके यहाँ पे मिलेगा, और निगेटिव यहाँ से होके इस तरीके से मिलेगा। मतलब जो इनपुट वोल्टेज किसको मिलेगा, लोड को। पर इनपुट वोल्टेज कौन सा बना है अपना, -Vs, क्योंकि निगेटिव हाफ साइकिल है। तो ये अगर +Vs है तो -Vs कहाँ से आएगा, ऊपर से, और उतना ही पोर्शन हमारे लोड को मिलेगा। कब, जब हमारे SCR T3 और T4 ऑन हो गए तब। कब ऑन हुए थे, पाई प्लस अल्फा पे। पाई प्लस अल्फा के पहले क्या रहेगा, हमारा वोल्टेज कितना रहेगा, 0, और करंट भी क्या रहेगा, 0। पाई प्लस अल्फा पे हमने उसको गेट पल्स देके ऑन किया, तो जैसे वोल्टेज की वेवफॉर्म है वैसे ही क्या आएगी, हमारी करंट की वेवफॉर्म। सिमिलरली 2 पाई पे क्या हुआ, हमारा करंट फ्लोइंग थ्रू द SCR T3 एंड T4 बिकम 0। देयरफॉर SCR T3 एंड T4 नेचुरली कम्यूटेट्स, वो क्या हो जाएंगे, अपने आप ही कम्यूटेट हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, फिर से T1 और T2 ऑन हो गए, पर कब, जब उसको गेट पल्स मिलेगा तब। तो 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर से गेट पल्स देके उसको ऑन करेंगे, तब तक हमारा वोल्टेज भी 0 रहेगा और करंट भी 0 रहेगा। 2 पाई प्लस अल्फा पे हमने उसको गेट पल्स देके ऑन किया, तो हमको वोल्टेज मिलेगा विच इज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। करंट की भी वेवफॉर्म वैसे ही आएगी। T1 और T2 पॉजिटिव हाफ साइकिल जब तक है तब तक काम करेंगे, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे, नेचुरली कम्यूटेट्स हो जाएंगे। 3 पाई के बाद फिर से निगेटिव हाफ साइकिल आएगी, तो T3 और T4 SCR विल बिकम forward bias, but it does not turn on until a gate pulse is not applied. Therefore VL and IL will become 0. After 3 pi plus alpha, a gate pulse is applied to the, किसको देंगे, निगेटिव हाफ साइकिल में किसको देते हैं, T3 एंड T4 को। तो उसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, फिर से लोड वोल्टेज मिलेगा और लोड करंट भी मिलेगा। फिर से 4 पाई पे करंट 0 हो गया, तो T3 T4 ऑफ हो जाएगी। देयरफॉर जो T1 और T2 जो है और T3 और T4 की जो पेयर है वो अल्टरनेटली काम करेंगी। यहाँ पे अपने को दिख रहा है इनपुट सप्लाई क्या था, AC सप्लाई था, और आउटपुट लोड वोल्टेज कैसे मिला हमको, पल्सेटिंग DC। इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, DC वोल्टेज। दिस इज द सिंगल फेज ब्रिज टाइप कंट्रोल फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द रेजिस्टिव लोड। एंड लोड वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज अगर हम इसका निकाला तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई
Vs divided by pi 1 plus cos alpha. Let us summarize our today's session. In this lecture, we studied the single phase bridge type full wave fully controlled rectifier with the resistive load. Assignment: explain single phase bridge type fully controlled full wave rectifier with resistive load. ये क्वेश्चन में आपको प्रॉपरली इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसकी वेवफॉर्म भी ड्रॉ करनी है फॉर द लोड वोल्टेज एंड लोड करंट ऑल्सो, एंड उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है. POs satisfied are PO1, PO2, PO3, PO4 and the PO8, 9, 10. In the next lecture, we will going to learn about bridge type full wave fully controlled rectifier with RL load. Thank you for watching this video and keep learning.